بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کابل کے نواحی کوہستانی سلسلوں کے اندر 12-13 سال کا ایک لڑکا وادی کے اندر بکھری ہوئی بھیڑوں کو ہانکتے ہوئے ایک جگہ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید وہ اپنے ریوڑ کو گھر لے جانا چاہتا تھا۔ اس لڑکے کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ بھیڑوں کو ہانک رہا تھا۔ اس کے کندھے پر کمان، پشت پر چھوٹے چھوٹے تیروں سے بھرا ہوا ترکش اور اس کی کمر سے ایک چھوٹی سی تلوار لٹک رہی تھی۔ ان سب اشیاء کے علاوہ حیرت انگیز چیز یہ تھی کہ لڑکے کی گردن میں لوہے کا ایک موٹا کڑا نما توق تھا اور ایسے ہی لوہے کے مضبوط کھڑے اس کی ٹانگوں پر بھی تھے۔ جب لڑکا ادھر ادھر بھاگتے ہوئے بھیڑوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتا تو گردن کا توق اور پنڈلیوں کے وہ کھڑے بری طرح ہلتے، جس کے باعث اس لڑکے کی گردن کا ایک حصہ اور دونوں ٹانگیں ٹخنوں کے قریب اس توق اور کڑوں کی وجہ سے سیاہی مائل ہو چکی تھی۔ اپنے ریوڑ کی بھیڑوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے بعد وہ لڑکا انہیں ہانکنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ وہ چونک سا پڑا، اس لیے کہ کوہستانی سلسلے میں اسے بھاگتے گھوڑوں کی تیز ٹاپوں کی آوازیں سنائی دی تھی۔ لڑکا اپنے ہاتھ میں چڑی تامے چونک کر ایک جگہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اچانک کوہستانی سلسلے کے اندر سے کچھ گھڑ سوار نمودار ہوئے اور اس لڑکے کے ریوڑ کے قریب آ رکے تھے۔ ان سواروں میں سے ایک نے آواز دے کر اس لڑکے کو اپنی طرف بلایا۔ لڑکا تھوڑی دیر تک اپنی جگہ جم کر بغور انہیں دیکھتا رہا۔ لمحہ بھر کے لیے اس کا ننھا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر چلا گیا تھا۔ پھر شاید اس نے کچھ سوچا، پھر اس کے بعد اپنی چھڑی ہلاتا ہوا جب ان کے پاس جا کر کھڑا ہوا تو جس سوار نے اسے بلایا تھا وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور اس لڑکے کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا، تیرا نام کیا ہے؟ لڑکے نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا، میرا نام عبداللہ ہے۔ اس سوار نے لمحہ بھر کے لیے سوچا، پھر وہ دوبارہ اس لڑکے کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ لڑکے، تو نے احمد شاہ ابدالی کا نام سن رکھا ہوگا۔ ہمارا تعلق اسی احمد شاہ کے لشکر سے ہے۔ احمد شاہ نے کابل کے نواح میں اس وقت اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا ہے اور ہم اپنے لشکر کی خوراک کے لیے جانور خریدنے کے لیے نکلے ہیں۔ دیکھو، تیرے ریوڑ میں سے ہم 20 بھیڑیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی کیا رقم لے گا؟ اس لڑکے نے لمحہ بھر کے لیے اس سوار کو بڑے غور سے دیکھا، پھر وہ پہلی بار بولا اور بڑے تند اور فیصلہ کن انداز میں وہ کہنے لگا، میں نہ کسی احمد شاہ کو جانتا ہوں اور نہ تم لوگوں سے واقف ہوں، میں اپنی بھیڑیں فروخت نہیں کروں گا۔ اس سوار نے اس بار خفگی، ناراضگی اور کسی قدر غضبناکی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر تو بھیڑیں فروخت نہیں کرے گا تو پھر ہم زبردستی تیرے ریوڑ سے اپنی ضرورت کے مطابق بھیڑیں لے لیں گے اور تجھے رقم بھی ادا نہیں کریں گے اور تیرے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ لہٰذا تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تو چاندی کے ایک مہرے کے عوض ہمیں 20 بھیڑیں دے دے۔ اس سوار کی یہ گفتگو سن کر لڑکا بھیپر گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ لڑکا اپنی اس کیفیت، اپنی اس حالت پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر وہ انتہائی تند آواز اور فیصلہ کن لہجے میں بولا اور کہنے لگا، تم لوگ زبردستی میری بھیڑیں حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر تم میں سے کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو نقصان اٹھائے گا۔ لڑکے کی اس گفتگو پر سوار نے جو اس سے گفتگو کر رہا تھا ایک مکروہ اور زہر برا کہکہا لگایا، پھر وہ عجیب سے تضحیک آمیز انداز میں کہنے لگا، تو گویا تم ہمیں نقصان پہنچاؤ گے؟ اچھا، میں اپنی ضرورت کے مطابق تمہاری بھیڑوں کو ہانکتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں تو ہمیں کیا نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سوار آگے بڑھا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے لڑکے سے اس کی چھڑی چھین لی، پھر ریوڑ میں داخل ہوا اور اپنی ضرورت کے مطابق کچھ بھیڑیں اس نے ایک طرف ہانکنا شروع کر دی تھی۔ اس سوار کی اس حرکت پر لڑکا اداس اور افسردہ ہو گیا تھا۔ پھر اچانک اس کے اندر انقلاب رونما ہوا۔ لڑکے کو نہ جانے کیا ہوا، بجلی کے ایک کوندے کی طرح وہ حرکت میں آیا اور ایک قریبی پتھر کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس نے کندھے پر لٹکتی ہوئی کمان درست کی، ترکش سے تیر نکال کر اس نے چلے پر چڑھایا اور کچھ اس طرح تاک کر اس بھیڑیں ہانکنے والے سوار کو مارا کہ اس کا تیر عین اس سوار کے اس ہاتھ میں جا کر پیوست ہوا تھا جس ہاتھ میں وہ سوار اس لڑکی کی چڑی پکڑے اس کی بھیڑیں ہانک لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تیر جو اس سوار کے ہاتھ کو چیرتا ہوا نکل گیا تو وہ بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے چڑی چھوٹ کر گر گئی تھی اور وہ درد کی شدت کے باعث شور شرابہ کرنے لگا تھا، جبکہ اس نے بھیڑوں کو ہانکنا بند کر دیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اس کے ساتھی سوار حرکت میں آئے۔ انہوں نے اپنی تلواریں سونت لی اور اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر وہ لڑکے کی طرف بڑھے، شاید لڑکے پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے۔ اس پر لڑکے کی غضبناک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، سنو اجنبی سوارو، میرے نزدیک آنے کی کوشش مت کرنا۔ تم نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یاد رکھو میرے پاس ابھی انگنت تیر ہیں، میرا نشانہ بڑا بے خطا ہے۔ جس طرح میں نے تیر مار کر تمہارے ساتھی کو زخمی کیا ہے، اسی طرح میں تمہیں بھی زخمی کر دوں گا۔ بعد میں یہ مت کہنا کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس لڑکے کے منع کرنے کے باوجود بھی جب وہ سوار آگے بڑھے تو لڑکا پھر حرکت میں آیا۔
बड़ी तेजी से अपने तरकश से तीर निकालकर वो अपनी कमान के चिल्ले पर चढ़ाते हुए ताक कर उन्हें मारता रहा। लड़के की तीर अंदाजी हैरत अंगेज तौर पर बेखता थी, इसलिए कि उसने तीर चलाते हुए अपनी तरफ बढ़ने वाले सारे सवारों को जख्मी कर दिया था। और सबसे बढ़कर ताज्जुब और हैरानगी की बात ये थी कि उसके तीर हर सवार के दाएं बाजू के कंधे के करीब पेवस्त हुए थे। इस सूरत हाल पर वो सवार और ज्यादा सीख पा हो गए थे। फिर उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, आगे बढ़ो और इस लड़के पर हमला आवर होकर इसे मौत के घाट उतार दो। सवार अपने जख्मों की अजियत पर ललकारते हुए आगे बढ़कर उस लड़के पर हमला आवर होना ही चाहते थे कि अचानक उस वादी में एक सवार नमूदार हुआ और चिल्लाकर कहने लगा, खबरदार, इस लड़के पर हमला आवर होने की कोशिश न करना। आने वाला नया सवार शायद पहले से आने वाले सवारों का कोई कमानदार था, लिहाजा उसका ये हुक्म सुनते ही वो अपनी जगह रुक गए थे। नया आने वाला सवार करीब आया। उसने देखा उन सबके शाने जख्मी थे और उनसे खून बह रहा था, जबकि एक सवार का हाथ जख्मी था और वो अपनी जख्मी हाथ में अपना लिबास फाड़कर पट्टी बांधने की कोशिश कर रहा था। नए आने वाले सवार ने थोड़ी देर के लिए अपने उन जख्मी साथियों को हैरत और ताज्जुब से देखा। फिर उसने पूछा, ये तुम लोगों को क्या हुआ? इस पर एक सवार बोला, दुख और परेशानी में कहने लगा, हम लश्कर के लिए इस लड़के के रेवड़ से बेड़े हासिल करना चाहते थे। जवाब में ये हम पर हमला और हुआ और तीर चलाकर हम सबको इसने जख्मी कर दिया है। अब हम इस लड़के को कत्ल किए बगैर यहाँ से नहीं टलेंगे। इस पर नया आने वाला सवार कहने लगा, नहीं, तुम हरगिज इस पर हमला आवर नहीं होगे, इससे मामला बिगड़ सकता है। नाजुक सूरत हाल का फैसला सिर्फ अहमद शाह ही करेगा। तुम बेड़ों के सारे रेवड़ को हाँक कर लश्कर की तरफ ले चलो, मैं इस लड़के को अपने साथ लेकर आता हूँ। अपने उस कमांडर का हुक्म सुनकर वो सब सवार हरकत में आए और रेवड़ को हाँक कर अपने पड़ाव की तरफ ले जाने लगे थे। नया सवार अपने घोड़े से उतरा, थोड़ा सा आगे बढ़कर लड़के के करीब आया और कहने लगा, देखो बेटे, मेरा नाम बरखुरदार खान है, मैं अहमद शाह अब्दाली के कमांडरों में से हूँ। बेटे, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, तू मेरे साथ मेरे लश्कर में चल। क्योंकि तूने कुछ सवारों को जख्मी किया है, लिहाजा इस मामले का फैसला हमारा हुक्मरान अहमद शाह अब्दाली ही करेगा। और सुन, वो इंसाफ करेगा, जुल्म नहीं करेगा। तू मेरे साथ चल, तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब्दुल्ला नाम के उस लड़के ने लम्हा भर के लिए बरखुरदार की तरफ बड़े गौर और गहरे अंदाज में देखा। फिर वो धीमी सी आवाज में कहने लगा, मैं नहीं जानता तुम्हारी बातों में किस कदर सच्चाई है, लेकिन तुमने चूंकि मुझे बेटा कहकर पुकारा है, लिहाजा मैं तुम पर एतबार करता हूँ, बशर्ते कि मेरा इंसाफ किया जाए। बरखुरदार कहने लगा, तू उठ तो सही बेटे, देख तेरे साथ इंसाफ ही होगा, जुल्म नहीं होगा। लड़के को शायद किसी कदर एतमीनान हो गया था। वो तीर जो उसने अपनी कमान के चिल्ले पर चढ़ाया हुआ था वापस उसने अपने तरकश में डाल लिया, कमान कंधे से लटकाई। फिर वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, आगे बढ़ा और बरखुरदार के करीब आकर किसी कदर नरम आवाज में कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बरखुरदार आगे बढ़ा, लड़के को सहारा देकर उसने घोड़े पर बिठाया, खुद भी वो अपने घोड़े पर बैठा। फिर उसे एड़ लगाकर कोहिस्तानी सिलसिलों में एक तरफ हाँक दिया था। बरखुरदार के पहुंचने से पहले ही पहले शायद उन सवारों ने सारा मामला अहमद शाह अब्दाली तक पहुंचा दिया था। इसलिए जब बरखुरदार अब्दुल्ला को लेकर अपने लश्कर के पड़ाव में दाखिल हुआ तो उसने देखा खुले मैदान में नीम दायरे की सूरत में लश्करी बैठे हुए थे, जबकि उस नीम दायरे के सामने वाले हिस्से में खजूर के पत्तों से बनी हुई एक चटाई पर अहमद शाह खुद बैठा हुआ था। चटाई पर अहमद शाह अब्दाली के दाएं तरफ काजी उल कज़ा फैजुल्ला खान और लश्कर के काजी इदरीस के अलावा अहमद शाह अब्दाली का वजीर शाह वली खान, सिपा सलार जहान खान पोपलजई, अहमद शाह का बड़ा बेटा जुल्फकार, अहमद शाह का चचा सर बुलंद खान बैठे हुए थे। जबकि अहमद शाह के बाएं तरफ चटाई पर अहमद शाह के बेटे सुलेमान, तैमूर, परवेज, सिकंदर के अलावा अहमद शाह का भतीजा अब्दुल खालिक और अहमद शाह का दूसरा भतीजा लुकमान खान बैठे हुए थे। बरखुरदार ने अब्दुल्ला को ले जाकर चटाई पर बैठे हुए अहमद शाह के सामने खड़ा कर दिया और वो खुद अहमद शाह के एक तरफ जाकर बैठ गया था। अहमद शाह ने थोड़ी देर तक अब्दुल्ला का बगौर जायजा लिया। उसने देखा अब्दुल्ला के गले में लोहे का मोटा कड़ा नुमा तोक था और ऐसे ही कड़े उसकी दोनों टांगों में भी थे। अहमद शाह ने यह भी देखा कि उस लड़के का लिबास बोरिये के अंदर ऊन भरकर बनाया गया था। लड़के के सर पर जो घिसी हुई बोसीदा टोपी थी वो भी बोरिये और बेड़ों की ऊन से ही बनी हुई थी। लड़के ने जो पाँव में जूता पहन रखा था वो जा बजा से पटा हुआ और पैबंद लगा हुआ था। अहमद शाह बड़ी गहरी निगाहों से कुछ देर उस लड़के का जायजा लेता रहा। फिर उसने उस लड़के को मुखातब किया, क्या तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है? लड़का मुंह से कुछ न बोला, ताहम उसने इस बात में अपना सर हिला दिया था। अहमद शाह ने फिर पूछा,
तुम ने मेरे सिपाहियों को तीर मारकर जख्मी क्यों कर दिया? इस बार लड़के ने अपनी झुकी हुई गर्दन सीधी की, बगौर अहमद शाह की तरफ देखा, फिर कहने लगा, उन्होंने मेरे रेवड़ की बेड़ों पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहा। मैं चूंकि रेवड़ का मुहाफिज और पासबान हूँ, लिहाजा मैंने उन पर तीर चलाए और उन्हें जख्मी किया। अहमद शाह ने फिर किसी कदर नापसंदीदगी का इजहार करते हुए पूछा, जब मेरे सिपाहियों ने तुम्हें माकूल रकम देकर तुमसे बेड़े खरीदना चाही तो तुमने क्यों इनकार किया? इस पर लड़के ने घूर कर अहमद शाह की तरफ देखा, फिर कहने लगा, अव्वल ये कि उन्होंने 20 बेड़ों की कीमत मुझे सिर्फ एक मोहरा देने की पेशकश की थी, जो सिर्फ एक बेड़ की कीमत बनती है। द्विम ये कि मैं जिस रेवड़ की पासबानी करता हूँ उसका मालिक नहीं हूँ, एक गुलाम हूँ। अपने आका की बेड़ों को इन कोहिस्तानी वादियों के अंदर चराता हूँ, लिहाजा मैं अपने आका के रेवड़ में से कोई बेड़ बेचने का मजाज नहीं हूँ। अगर मैं ऐसा करूँ तो मैं खयानत और बददियानती का मुर्तकिब होऊंगा, और मैं ऐसा हरगिज पसंद नहीं करता। बददियानती और खयानत करने के बजाय मैं मौत को तरजीह देना पसंद करता हूँ। लड़के का जवाब सुनकर अहमद शाह अब्दाली दंग रह गया था। फिर वो अपने पहलू में बैठे काजी उल कज़ा फैजुल्लाह खान को मुखातिब करते हुए ताजुब और हैरत में कहने लगा, 20 भेड़ों की कीमत सिर्फ एक मोहरा, इतनी बड़ी ज्यादती? फिर अचानक अहमद शाह के माथे पर शिकने और बल पड़ गए थे। फिर उसने अपने करीब खड़े एक मुसल्ला जवान को मुखातिब करके कहा, जिन जवानों को इस लड़के ने जख्मी किया है उन सबको भी मुजरम की हैसियत से अब्दुल्ला नाम के लड़के के पहलू में लाकर खड़ा कर दो। वो पहरादार फौरन हरकत में आया और थोड़ी ही देर बाद अब्दुल्ला के हाथों जख्मी होने वाले सारे सिपाही अब्दुल्ला के करीब अहमद शाह के सामने आन खड़े हुए थे और उनके जख्मों पर पट्टियां बंधी हुई थी। अहमद शाह चंद लम्हों तक अपने सिपाहियों को देखता रहा, फिर दोबारा उसकी निगाहें अब्दुल्ला पर जम गई और उसे मुखातब करके पूछने लगा, तुम्हारी गर्दन में ये लोहे का तोक कैसा है और तुम्हारी टांगों में ये कड़े कैसे हैं? किसने तुम्हें ये पहनाए हैं और इसका क्या मकसद और मुद्दुआ है? और ये कि तुम्हारे जूते इस कदर पटे, बोसीदा और मुरम्मत शुदा क्यों हैं? तुम्हारा लिबास टाट और बोरिया का बना हुआ क्यों है? क्या तुम्हारा आका तुम्हारे साथ सख्तगिरी का काम लेता है? क्या वो तुम पर जुल्म और सितम करता है? बता, तेरी ये काबिल रहम हालत किसने बना रखी है? अब्दुल्ला अहमद शाह अब्दाली के इन सवालात का जवाब देने ही वाला था कि अहमद शाह के सामने जो उसके लश्करी नीम दायरे की सूरत में बैठे हुए थे, उस दायरे के अंदर 2 दरवेश दाखिल हुए। एक दरवेश का नाम साबिर था, जिसे अहमद शाह अब्दाली जानता था। अहमद शाह अब्दाली दरवेश साबिर को अपना रहबर और रहनुमा तस्लीम करता था और उस दरवेश साबिर की अहमद शाह अब्दाली बड़ी इज्जत व तौकीर करता था। ताहम दूसरा दरवेश ना आशना और अजनबी था। अहमद शाह ने थोड़ी देर दोनों दरवेशों को बड़े गौर से देखा, फिर वो अपने पहलू में बैठे अपने वजीर शाह वली खान को मुखातब करते हुए पूछने लगा, शाह वली खान, ये जो 2 दरवेश सामने नमूदार हुए हैं, एक तो उनमें हमारा अपना साबिर दरवेश है और ये दूसरा दरवेश कौन है? जवाब में शाह वली बोला और कहने लगा, आका, मैं तो सिर्फ अपने दरवेश साबिर ही को जानता हूँ और दूसरा दरवेश कौन है मैं नहीं जानता। अहमद शाह अब्दाली शायद कुछ और भी पूछता कि वो अजनबी दरवेश जरा आगे आया, अपने हाथ में पकड़ा हुआ नेजा जमीन के अंदर पेवस्त किया। थोड़ी देर तक कमाल जुरत और दलेरी का मुजाहरा करते हुए उसने अपनी आंखें अहमद शाह की आंखों में डालकर बड़े कहर भरे अंदाज में उसकी तरफ देखा। फिर ऐसी ही निगाह उसने दूसरे दरवेश पर डाली, जिसके जवाब में दूसरे दरवेश ने अपने हाथ में पकड़ी हुई डफली पर जरब लगाई और एक अजीब सी धुन में उसने डफली बजाना शुरू कर दी थी, जिसके जवाब में वो अजनबी और नाआशना दरवेश उस नेजे के गिर्द जो उसने जमीन में गाड़ा था तुर्कों का रक्स दरवेश करने लगा था। अहमद शाह अब्दाली बड़ी हैरत और ताजुब से उस दरवेश को तुर्कों का रक्स दरवेश करते हुए देख रहा था। उस दरवेश के रक्स में जिंदगी का इंजिजाब और बातन का अक्स मावरा निहा था। ऐसा लगता था वो दरवेश रात के गोशों को मदार अमल बनाकर मौत के अंधे कुएं का रक्स करने लगा हो। डफली बजती रही और उसकी लय पर वो अजनबी दरवेश इस तरह रक्स करता रहा जिस तरह मुंह जोर बादलों की घटाएं पानी की तलाश में निकलती हैं। अहमद शाह अब्दाली के सामने मासूम और खूबसूरत चेहरे वाला अब्दुल्ला अपनी नन्ही और गहरी आंखों से उस रक्स करते दरवेश को देखे जा रहा था। इस मौका पर उसकी हालत उबलते सवालों की नन्ही ख्वाहिशों की तरह होकर रह गई थी। डफली बजती रही, लोग सवालिया अंदाज में देखते रहे, दरवेश रक्स करता रहा और रक्स करते करते उसके सर पर बंधे हुए अमामे के पेच आहिस्ता आहिस्ता ढीले होते रहे, यहाँ तक कि उसके सर पर बंधा हुआ अमामा पूरे पेच ढीले होने के बाद जमीन पर गिर गया था। अमामे के जमीन पर गिरने के साथ ही उस दरवेश ने रक्स बंद कर दिया। जमीन पर गड़ा हुआ नेजा खींचकर उसने संभाला, फिर उस नेजे से वो अहमद शाह अब्दाली की तरफ इशारा करते हुए अपनी खोलती और गरजती हुई आवाज में कहने लगा, सुन अहमद शाह, जिस तरह मेरे इस अमामे के पेच लम्हा बलम्हा ढीले होकर मेरा अमामा जमीन पर गिर गया है,
इस तरह ए अहमद शाह जिंदगी के माओसाल भी अमामे की पेच की तरह ढीले होते चले जाते हैं और एक रोज इंसान यहाँ से रुखसत हो जाता है। अहमद शाह किताब हयात उठा कर देख, पलट कर कभी अपनी माजी की तरफ ध्यान कर, कहाँ गए गुजरी रुतों के तेरे आबाओ अजदाद। सुन अहमद शाह, रोज शब के इन हंगामों में, लैलो नहार की इस गर्दश में हर शय आर्जी, हर चीज काफिले की गर्द है। यहाँ तक कहने के बाद वो अजनबी दरवेश कुछ देर के लिए रुका, फिर वो दोबारा अहमद शाह को मुखातब करते हुए कह रहा था, सुन अहमद शाह, ये लड़का यतीम भी है, गुलाम भी, मिस्कीन भी। अहमद शाह, अब तू अब्दुल्ला नाम के इस बच्चे का फैसला कर, जो गुलाम भी है, मिस्कीन भी और यतीम भी। मैं देखता हूँ तू क्या फैसला करता है। इसके साथ ही वो दरवेश आगे बढ़ा। जमीन पर बिखरा हुआ अमामा उसने उठाकर अपने सर पर बांध लिया, फिर अपना नेजा संभाल कर चुपचाप खड़ा हो गया था। दूसरा दरवेश साबर भी अपने हाथ में डफली पकड़े उस दरवेश के पहलू में खड़ा हो गया था। अहमद शाह बोला और उन दोनों को मुखातब करके कहने लगा, तुम दोनों आगे बढ़ो और मेरे पहलू में आकर बैठ जाओ। जवाब में वो अजनबी दरवेश कहने लगा, जब तक इस बच्चे का फैसला तुम नहीं करते उस वक्त तक अहमद शाह हम दोनों यहीं खड़े रहेंगे। जवाब में अहमद शाह अब्दाली ने कुछ सोचा, फिर दोबारा बोला और दरवेश को मुखातब करके पूछने लगा, सुन ए अजनबी दरवेश, तेरा नाम क्या है? ये जो लड़का मेरे सामने खड़ा है और जिसका नाम मुझे अब्दुल्ला बताया गया है, इससे तेरा क्या ताल्लुक, क्या वास्ता है? अगर तू इस लड़के को जानता और पहचानता है, फिर बता इसके गले और इसकी टांगों में लोहे के मोटे तोक किसने पहनाए हैं? इस मासूम बच्चे को टाट का लिबास और टाट ही की टोपी क्यों पहनाई गई है? क्यों इसे पेबंद लगे जूते पहनने को दिए गए हैं? ये लड़का किसका रेवड़ चराता है, किसका गुलाम है और क्यों इसके आका ने इसकी ये हालत बना रखी है? अहमद शाह अब्दाली के इन सवालों का जवाब देते हुए वो दरवेश कहने लगा, सुन अहमद शाह, मेरा नाम उबैदुल्ला है, मैं जात का तुर्क हूँ और ये साबर दरवेश जो तुम्हारा जानने वाला है, ये मेरा पीर भाई है। ये लड़का जो इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा है, जिसका नाम अब्दुल्ला है, मैं इसके बाप का नमक ख्वार और कदरदान रहा हूँ। इस लड़के के बाप का नाम बैरम खान था, जो एक तुर्क था। इस लड़के की माँ का ताल्लुक सिस्तान के अरबों से था। बदकिस्मती से इस लड़के की माँ ऐसी खूबसूरत और पुरकशिश थी कि इन इलाकों में कोई भी लड़की उस जैसी हसीन और पुरजमाल न थी। इस लड़के का बाप एक दराज दस्त इंसान का खाजन था, जो इसकी माँ से शादी का ख्वाहिशमंद था, लेकिन इसकी माँ ने उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया। शादी के बाद इस लड़के के बाप बैरम खान को जब खबर हुई कि जिसके यहाँ वो खाजन है वो भी उसकी बीवी को पसंद करता है, तो वो बीवी को लेकर वहाँ से भाग गया और एक दूसरे वाली और हुक्मरान के पास चला गया। कुछ अरसा इसके बाप बैरम खान ने उस शख्स के यहाँ मुलाजमत की। उसी मुलाजमत के दौरान ये बच्चा पैदा हुआ। पहले दराज दस्त इंसान ने दूसरे दराज दस्त इंसान से, जिसके यहाँ बैरम खान ने मुलाजमत की थी, दरख्वास्त की कि वो बैरम खान उसकी बीवी को उसके पास भेज दे। इसके लिए उसने दूसरे दराज दस्त को अच्छी खासी रकम भी मुहैया की थी। इन हालात में दूसरे दराज दस्त इंसान ने दोनों मियाँ बीवी को अपने कुछ मुसल्लह जवानों के साथ पहले दराज दस्त की तरफ रवाना किया, लेकिन रास्ते में उन दोनों मियाँ बीवी को इसका इल्म हो गया और दोनों भाग खड़े हुए। लेकिन उन मुसल्लह जवानों ने उनका ताकुब किया। उस ताकुब में उस लड़के की माँ मारी गई और उसके बाप को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद बैरम खान को गिरफ्तार करने के बाद पहले दराज दस्त के सामने पेश किया गया, जिसने उसके गले में थोक डालकर जंजीरों से बांधा और बैरम खान को अपना कैदी बनाकर रखा। पर वो बैरम खान इंतहा दर्जे का दलेर, शुजा और ताकतवर था। एक रात वो उस तोक को तोड़ने में कामयाब हो गया जो उसके गले में डाला गया था। तोक को तोड़कर वो भागा और उस दराज दस्त इंसान के पहरेदारों ने उसका ताकुब किया। बैरम खान और ताकुब करने वालों में जंग हुई, जिसके नतीजे में बैरम खान उनके हाथों मारा गया। इस सारी कार्रवाई के दौरान मैं बैरम खान के साथ था और ये बच्चा मेरी हिफाजत और कफालत में था। बैरम खान और उसकी बीवी के मारे जाने के बाद अब्दुल्ला नाम के इस बच्चे को उसके दादा के सामने पेश किया गया। उसके दादा ने पूरे हालात सुनने के बाद इसके गले और पाँव में लोहे के वजनी तोक डाल दिए और फैसला दिया कि लड़के को गुलाम बना दिया जाए। जब ये बालिग हो तो गले वाला तोक अपने बाप की तरह तोड़ने की कोशिश करे। अगर ये इस तोक को तोड़ने में कामयाब हो जाए तो उस वक्त ये एक आज़ाद इंसान कहलाएगा, और अगर ये इस तोक को तोड़ने में कामयाब न हो तो पूरी जिंदगी एक गुलाम की हैसियत से बसर कर दे।